So this is one quote by Rumi, which says, "You were born with wings. So why do you prefer to crawl through life?" And with that, I'd like to welcome you all to Saturday Suspense and Light of Science. And first of all, thanks a lot, guys, for joining it. It means a lot to us. I want to make sure that every single minute you spend on this podcast, there's something new to learn and something to take off from this show. And I know many of you had this question in your mind: ki, why did we started Life Talk Science in the first place? What was the major reason? Uh, बहुत simple है major reason. The reason why we started Life Talk Science is human beings, the people. Why people? Because वो कहते हैं ना कि आप लोगों को जान सकते हो पर उन्हें पहचान नहीं सकते. लोगों को जानने और पहचानने में एक डिफरेंस होता है. तो हमारी जर्नी वो रहेगी कि लोगों को बेसिकली उन्हें पहचानना इस लाइफ ऑफ साइंस के थ्रू. So before I actually introduce you to the speaker of the show, I like to introduce my co-host, Snik Katia, who also happens to be the whole brainchild behind Life of Science. So presenting you, Snik Katia. So thank you so much, Siddharth. So good evening, everyone, and welcome to Life Talks ISM presents the Saturday Suspense. Before moving on, let's as our first guest is have a background of traveling and is also a filmmaker. So कुछ शब्द तो उनके सफर के ऊपर बनते ही हैं. सफर एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर किसी का भी दिल खुश हो जाता है. वो कहते हैं ना, सफर का ही था मैं सफर का रहा. पर हर सफर में होता है एक रास्ता. रास्ता जो गुजरता है पहाड़ों के बीच से, नदियों के बीच से और कभी कभी बादलों के बीच से भी. ट्रैवलिंग इज जस्ट लाइक एन एडिक्शन. नए लोगों से मिलना, नए चीजों के बारे में जानना, इट ऑल फील स्पेशल. सफर को और शानदार बनाते हैं दोस्त. बिना दोस्तों के सफर का मजा नहीं. दोस्तों की बात करते ही मुझे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की याद आ जाती है. Life is like happiness at one time, sadness at other. What is left with us are the places we visit and the memories that we made that are attached in our hearts for eternity. I hope ये सुनकर आपको आपकी यादें ताज़ा हो गई होंगी. And I also hope that you will be enjoying the show as we carry forward. Now I would like my co-host Siddharth to take it forward. Over to you, Siddharth. Thank you, Snik, for such a wonderful introduction. Also, guys, before we actually start the show, I'd like to say sorry to all of you because we can't have the first speaker on the show because he's going to some medical condition. That is Director of ITS in Dhanbad, Rajiv Shekhar. But we're going to make sure that he will be on the show very soon. And with that, I'd like to introduce you to the speaker of today's show, who is a traveler, a filmmaker, and YouTuber, and who also happens to be an engineer. He's none other than the founder of Etrel, Ayush Dhankar, sir. So good afternoon, sir. So you can just turn on your mic, sir. Good afternoon, guys. Thank you so much for having me. Yes, sir. So is my voice clearly audible to you? Yeah, I am able to hear you. Yes, sir. So this will be a very casual conversation like thing, sir. We'll be more talking to you than actually interviewing you those things. So you're completely fine with it, sir? Absolutely, I love it that way. Yes, sir. Okay, sir. Before we actually begin with the question, I like to say this one thing that the whole corona has hit the world in a very rapid manner, and we all are going through something or the other. So you being a traveler, I think that you're facing some issues because you can't travel right now. वो कहते हैं सर ना कि जो भी ट्रैवलर होता है वो उनको चार दीवारों में रहने की बीच की आदत नहीं होती, तो चार दीवारों के बीच में रहने की आदत नहीं होती. तो सर आपका क्वारंटाइन कैसा रहा? लाइक हाउ वे द लास्ट 4 to 5 months फॉर यू? So मतलब more than a traveler, I think I am a filmmaker. So मेरे को वो चीज़ उतनी हिट नहीं की because I was, just a second, yeah. So I was not, मतलब स्टार्टिंग में मुझे उतना नहीं लगा कि मुझे ट्रैवल करना है या फिर मन कर रहा है ट्रैवल करने का. एंड आई वाज फाइन विद इट बिकॉज उससे पहले भी मैं जैसे ही जब मार्च में ये सब स्टार्ट हुआ इंडिया में, उससे पहले मैं जस्ट ट्रैवल करके आया ही था, गोवा केरला होके आया था और मेरे पास काफ़ी फुटेज पड़ा भी हुआ था जो कि मैंने अभी तक पूरा रिलीज भी नहीं किया चैनल पे. सो ऑल इन दोस आई वाज फाइन, राइट. मतलब मेरे पास काफ़ी स्टफ पड़ा हुआ था. सो दैट डिड नॉट हिट मी in that sense, I am missing travel as such.
and I travel because I make films, you know. So as long as I am editing and creating something, I am fine with it. लेकिन मुझे लगता है अब थोड़ा सा मुझे लगने लगा है, बिकॉज अब 4-5 महीने हो गए, एंड वो जो एक है जाके कुछ ट्रैवल, क्योंकि आप क्रिएट करते हो, एडिट करते हो, तब कुछ क्रिएट करते हो, दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस, बट अब आप शॉट ले रहे होते हो और आप अपने कैमरे में कुछ कैप्चर करते हो, वो अलग प्रोसेस है. So I think now I started to feel a bit, so plan something. अभी तो cases बढ़ ही रहे हैं, so I'm not हाँ sure, सर. but see how it goes. Okay, sir. So now we'll start with the questions. And so I think like college से शुरू करते हैं, क्योंकि सबकी जर्नी कहीं ना कहीं से वहीं से शुरू होती है. So my question to you would be, sir, when you were in college, did you ever thought of becoming a filmmaker or a traveler as such? Actually नहीं, मतलब जब मैं कॉलेज गया था तब तो कुछ आइडिया नहीं था. मैं उतना ज़्यादा लाइक आई हैड नेवर यूज्ड द कैमरा ऑल्सो एज सच. मतलब हमारे पास एक फिल्म कैमरा था जो कि पहले होते थे सबके घर में, बट मैंने कभी ऐसा कुछ, मेरा बैकग्राउंड नहीं था कि बचपन से कुछ शौक रहा हो, या फिर आई यूज्ड टू ट्राई न्यू थिंग्स, एंड कभी कुछ गिटार ट्राई कर लिया, कभी कुछ कर लिया कॉलेज आके. बट देन आफ्टर सेकेंड ईयर आई गॉट अ कैमरा. तब की बात है जब इंटरनेट आया ही था, और फिर सबका एक एवरीवन यूज्ड टू हैव अ, मतलब जो भी फोटोग्राफी में थे, दे वुड क्रिएट अ पेज बाय देयर नेम, सो फोटोग्राफी. तो मैंने एक आयुष दिनकर फोटोग्राफी नाम से पेज स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड अपलोडिंग फोटोज, आई गॉट अ कैमरा. तो आई थिंक इनिशियली कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक रिकग्निशन पाने के लिए रहा होगा, बट जब मैं उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ अगले 2-3 साल, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये एंड मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या फिर ओवरऑल भी हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा मतलब रूडिमेंट्री है, तो मुझे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता था. मतलब एज सच मैंने अपना डिग्री कंप्लीट कर लिया ठीक ठाक, मतलब मार्क्स आ गए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे बट बहुत बुरे भी नहीं थे. बट आई थिंक ओवर द इयर्स मैंने वो, जब तक सेकेंड ईयर से लेकर फोर्थ ईयर के एंड तक मुझे ये क्लियर हो गया था कि आई एम गोना गो इनटू फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग. फिर वो धीरे धीरे कॉलेज से निकलने के बाद और कहानी शुरू हुई, बट दैट वाज द ओवरऑल स्टार्ट, और फिर आई डोंट, मतलब तुम लोगों के कॉलेज, आई हैव बीन टू आईएसएम धनबाद वंस फॉर अ फेस्ट, एंड यू वुड अग्री कि जो झारखंड में, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव बीन टू बीआईटी, बट बीआईटी इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन सेंस ऑफ in terms of the location where it is. It's Yes, sir. We have friends over there, sir. हमारे दोस्त हैं yeah, so बहुत it's सारे almost वहाँ in the middle of a, I wouldn't say jungle, but it's quite close to nature. It's a very big campus, so there were a lot of avenues for photography. तो वहाँ पर explore करने को बहुत कुछ मिला. ठीक है. So you're a mechanical engineering student, so like, sir, हम मतलब I don't know if you agree with this fact or not, but majority of boys why they join college is that दो रीजन होता है सर. एक तो प्लेसमेंट, दूसरी थी लड़कियां सर. और सर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थे सर, तो गर्ल्स टू बॉयज रेशियो कैसा था आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो बहुत खराब है सर, आपके यहाँ कैसा था? दो लड़कियां थी और पूरा बैच हम लोगों का आई थिंक होगा ऐसे 50-60 कुछ, उसमें से 2 लड़कियां थी. So you can now imagine. You had a crush in college, sir, or did you ever feel a heartbreak? College में heartbreak हुआ सर? नहीं, आई एम वेरी लकी इन दैट एरिया, बिकॉज मैं कॉलेज जाने से पहले ही जो मेरी अभी वाइफ है, शी इज फ्रॉम माय स्कूल, सो वी वर, आई मीन आई वुडंट से वी वर इन अ रिलेशनशिप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. वी हैड सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड, दोस्ती वोस्ती हो गई थी कॉलेज के एंड होते होते 12th क्लास के बाद, बट कॉलेज में मतलब आई नेवर हैड अ गर्लफ्रेंड बिकॉज आई ऑलरेडी वाज इन्वॉल्वड इन विद माय गोइंग टू बी वाइफ. हम लोगों का मतलब इट वाज अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बट मतलब ऊपर वाली के दया से सब अच्छा ही रहा. Yes, sir. So you talk about your love story a little later for the podcast. उसके बारे में आते हैं सर. Right now we talk about Ethereal, sir. Why is Ethereal name Ethereal? If I'm pronouncing it right, sir, हो सकता है pronunciation गलत कर रहा हूँ. Ethereal, हाँ, Ethereal. So sorry, basically, see, Ethereal essentially is something which is very untangible, right? And which is, और मतलब पहले ये माना जाता था कि ईथर नाम का एक सब्सटेंस है जो कि आउटर स्पेस में, मतलब अभी तो हमें मालूम है कि स्पेस में कुछ नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाए तो आजकल डार्क मैटर वगैरह की बात हो रही है, बट उसमें नहीं जाएंगे. तो इट वाज बिलीव दैट ईथर इज समथिंग व्हिच वाज देयर आउटर स्पेस. डिक्शनरी मीनिंग की बात अगर करें तो फिर इट मीन समथिंग व्हिच इज
very intangible and very light, and you know, तो मेरे को ऐसा लगता है जो कहानियां मैं बताने की कोशिश करता हूँ वो they are something that you can feel and relate with, and uh, they deal with human emotions, right? And I try to, you know, always keep a human emotion in mind while I'm creating any video. So कहीं ना कहीं वो justify करता है. Having said that, I think ये I would like to clarify, ये नाम मैंने choose नहीं किया था. There was मेरे college में was a junior, his name is Abhishek, he is now a journalist. But हम लोगों ने starting में एक साथ start किया था. So he was the one who chose this name, Ethereal Colors. When I started the YouTube channel, I renamed it to just Ethereal. Okay, sir. So we're going to your videos. हमने देखा कि there's a sense of spirituality in all your videos. Like your favorite place also happens to be Varanasi. So are you into spirituality? I would not say I'm too much into it, but I like to explore spirituality. Spirituality, लेकिन जितना ज़्यादा explore मैंने, मतलब जितना मैं ज़्यादा उस पर डीप में घुसने की कोशिश की है, मुझे समझ में आया है कि मतलब उतना ज़्यादा कुछ, मतलब आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपके वर्ल्ड व्यू होते हैं, वो रैशनैलिटी पे बेस्ड होने चाहिए, रीज़न पे बेस्ड होने चाहिए. और कहीं ना कहीं आजकल मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग थोड़ा सा उससे अलग होता जा रहा है, क्योंकि लोग अपने यू नो फेथ में बिलीव ज़्यादा करने लगे हैं, जबकि बिलीफ अलग होता है और फेथ अलग होती है. हाँ सर. बट मतलब आई वुडंट से आई एम टू मच इनटू इट, बट या आई लाइक टू एक्सप्लोर द ह्यूमन एलिमेंट्स एंड ह्यूमन इमोशंस एंड कंडीशन, ह्यूमन कंडीशन, and spirituality is definitely one part of it. So I mean, why not? Yes, sir. So since you said you're a filmmaker, and so every filmmaker storyteller has a different style of telling a story, right, sir? Some make it very slow pace, some is very fast paced. कुछ लोगों को मतलब कुछ moral देना पड़ता है. So what is your style of telling a story or making a film? So I think, see, I like to create a story where I am as a character going out and exploring a certain concept. Now अगर जैसे आपने बनारस की बात करी, तो सुबह बनारस जो मैंने वीडियो बनाया बनारस में, जब मैं पहली बार 2012 में गया था, तो मैं I was very intrigued by the mornings in Banaras, because I felt when I got to the ghats for the first time during mornings and I saw the activities happening around, I was, you know, I was mind blown because I saw so many things happening. And so mornings से, और आई थिंक आप रिलेट करोगे, मैं तो एटलीस्ट सुबह उठने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी स्टार्टिंग में, जब मैं एटलीस्ट कॉलेज में था या कॉलेज के बाद करते, तो आई वुड, यू नो, क्योंकि हमारी एक दिनचर्या बनती है, तो हम रात में, मैं बहुत लेट सोता था और फिर सुबह उठता था काफ़ी लेट. सो बट मैंने ये रियलाइज़ किया था कि सुबह उठते हो जब आप जल्दी, आई थिंक हर कोई एग्री करेगा कि जब आप जल्दी उठते हो तो आपका दिन थोड़ा बेटर जाता है, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो, ज़्यादा टाइम होता है आपके पास दिन में करने के लिए, और आपके थॉट्स में भी क्लैरिटी रहती है थोड़ी सी. सो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे इंट्रीग करी, और मैंने, यू नो, आई वेंट अहेड एंड क्रिएटेड अ फिल्म अबाउट मॉर्निंग्स. एंड मॉर्निंग्स आई थिंक वाराणसी से बेहतर कोई जगह नहीं है एक्सपीरियंस करने के लिए, because it's, you know, it's just beautiful visually also, and in terms of people, in terms of activities happening, it's, you know, they welcome mornings basically, if that's the right thing to say, I think. So I went ahead and created that film. Okay, sir. Thank you for the wonderful answer. So now, like that, I will carry forward all the questions, sir. Thank you, sir. Then continue with it. Okay, thank you so much, Siddharth, and thank you, sir, for answering it in a wonderful manner. Sir, let's change the mood a little bit. And आपके बारे में बहुत कुछ जान लिया about your college life and also about your channel somewhat. So, sir, अब like we are bringing a rapid fire round for you. So, are you ready for it? I am bad at that. Okay. So, okay, sir, ठीक है. starting with the basic question. So, sir, what is one of the things that you would put on your bucket list right now? Right now, Yes. I already have so many things on my bucket list. I want to go more deep into some of the communities, and I think Rajasthan मुझे बहुत इंट्रीग करता है. इनफैक्ट मार्च में मैं जाने भी वाला था, बट जा नहीं पाया. राजस्थान में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, so I want to go there and, you know, do a lot of things with the, you know, indigenous people of Rajasthan. Okay, so that's wonderful, sir. So, moving on, if a movie was made on your life, who would you want to play
Like who would you want to play as you? भाई मुझे आई थिंक ये बहुत ही वेग क्वेश्चन है, मतलब ये मेरे से इस समय पूछना बहुत ही मतलब गलत होगा, बिकॉज मैं अगर बोलूँ कि रणवीर कपूर करे मेरी फिल्म के लिए तो मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, बट अगर But still, करना हो तो आई थिंक रणवीर कपूर. okay, that's great. What is one thing that annoys you the most about YouTube? यूट्यूब एल्गोरिदम, मतलब काफ़ी, मैं अब अगर एक टॉक करूँ अलग से तो मैं करूँगा बात, बट ओवरऑल मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मतलब ठीक है कॉर्पोरेट सब नंबर्स के पीछे भागते हैं, बट आई फील दैट कहीं ना कहीं अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्लिक बेट बहुत ज़्यादा है यूट्यूब में, और यू नो कंटेंट कुछ थोड़ा सा उनको देखना चाहिए इस बारे में, क्लिक बेट और वो जो बना दिया एक हाँ सर. शॉर्ट अटेंशन स्पैन में आपको लोगों को ल्योर करना है, यू नो, और ऑफ दैट वो स्टोरीज कहने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो आई थिंक दैट वुड बी. Yes, sir. Sir, if you could trade lives with anyone for a day, who would it be and why? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैंने सोचा नहीं है. धोनी में भी, क्योंकि अभी धोनी जस्ट रिटायर हुआ है, आई वुड लाइक टू नो कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में. Acha. Yes, sir. All of us want to know that. Okay, sir. Moving on. What change would you Yeah. bring if you are made the PM of the country? पीएम ऑफ द कंट्री, आई व्हाट चेंज आई वुड ब्रिंग, यार मुझे लगता है मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, मुझे पता है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी भी है, एग्री, बट कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो चीज़ों का, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है जो रूडिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम है उससे हटके थोड़ा सा हमको अब प्रैक्टिकल चीज़ों में जाना चाहिए लोगों को. तब आई थिंक इंडियन बहुत सारी जो भी अभी प्रॉब्लम्स है, कम्युनल Sir. प्रॉब्लम्स हैं, या फिर यू नो वो सारी चीज़ें भी सॉल्व हो जाएंगी, प्लस हम लोग क्रिएटिव भी ज़्यादा बनेंगे. Yes, sir. That's what we also feel like because in engineering colleges ये तो होता ही है मतलब और engineering के कोई भी अलावा कॉलेज लोग और आप, कुछ. हाँ, आपको पता है, आप अपने आप ही पढ़ते हो इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई भी हो, आई थिंक ओवरऑल खुद पढ़ के ही पास होते हैं एग्जाम्स में. हाँ sir. Okay, तो sir. Moving ahead. So, do you have a song that suits your relationship? And if so, what song? माय रिलेशनशिप विद माय वाइफ, Yes, sir. राइट. Yes, sir. Yes. पता नहीं यार, ये तो थोड़ा मतलब मैं उतना फिल्मी नहीं हूँ, सोचना पड़ेगा. um, पता नहीं, आई एम रियली सॉरी. It's okay, ये sir. क्वेश्चन मैं सोच के, बट आई विल आंसर दैट, सोच के Okay, बताऊंगा. sir. Sure, sir. Sir, it's a kind of vague question, I would say, but still. Sir, which celebrity or oblique politician annoys you the most? संबित पात्रा. Okay, sir. What is the first thing you notice about someone when you first meet him or her? देखो आई थिंक, मतलब आई वुड नॉट से द फर्स्ट थिंग, बट किसी से जब आप मिलें और उनसे बात करें, जब आपको यू शुड, मतलब आई ट्राई टू लुक इनटू देयर आईज, एंड मतलब जो चेहरा जो जबान कहता है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आंखें बहुत ज़्यादा चीज़ें बताती है लोगों के Yes, sir. बारे में. तो आईज आईज टेल द स्टोरी अलॉट. Okay, sir. Sir, if your plane was about to crash, who would you want sitting next to you at that time? वाज अबाउट टू क्रैश, Yes, माय वाइफ, okay. मतलब साथ में मरेंगे. Yes. Sir, it's a kind of weird question as I know that you are engaged, but still, like, have you fallen in love with someone while traveling or shooting? नहीं एक्चुअली, मतलब मैंने ट्रैवल करना और फिर वीडियोस बनाना बाद में स्टार्ट किया, यू नो, व्हेन आई वाज ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप. तो माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली आपके, तो मतलब मुझे लगता है सच हुआ नहीं कभी कुछ. Okay, sir. पर That's ऐसा great, कुछ, sir. क्योंकि आप देख किसी चीज को आप सीख कर रहे होगे तब आपको होगा, तो मेरा आई थिंक आई वाजंट सीकिंग समथिंग लाइक Yes, sir. दैट. Sure, sir. Okay, sir. If you could add a person to Mount Rushmore, like who would it be and why? हु वुड इट बी? आई थिंक, मतलब अगर पॉलिटिकल फिगर्स में देखा जाए तो अम्बेडकर हैज डन अ लॉट, पीपल डोंट रियलाइज Yes, इट, sir. उनको थोड़ा सा एक मतलब दलित लीडर बना के
वो कर दिया गया है, बट आई थिंक अगर लोग उनके बारे में पढ़े जाने तो दे विल बी अमेज्ड. So I Yes, sir. think So amazing, that's sir. why I think. Sir, right now I will be just like putting forward some words in front of you, and whatever be the first thing that comes to your mind, you just let us know that. Okay, sir. So are you ready for it? Yeah, Okay, sir. So the first one is adventure. Meghalaya, Okay, sir. BJP. Modi, Okay, sir. Mechanical engineering. BIT Mesra, Okay, sir. China. China, अभी राफाल, Okay. So last one, ICICI Bank. ICICI बैंक. Yes, sir. क्या है उनका टैगलाइन? समथिंग Uh, समथिंग आपकी. no, sir. Actually, we saw that you tweeted a lot of times regarding that ICICI Bank. अच्छा, ओके ओके ओके. So हाँ, वो that's why बीच I में thought कुछ that it must be an interesting part. like but that's not just ICI actually. That हाँ, so one word that would come to my mind was spam messages, credit card ये लो. तो मतलब अभी इनफैक्ट आई टेल यू, यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, Okay. पिछले एक हफ्ते से 4-5 बार फोन आ चुका है मेरे पास का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, और मैंने हर नंबर ब्लॉक किया है, बट दूसरे नंबर से कोई दूसरा आदमी फोन कर रहा है. तो आई थिंक वो कुछ लिस्ट होगी. तो ये बहुत आई हेट दिस. Okay, sir. So, sir, we are done with the questions or the rapid fire. And sir, अब audience के भी जनता के भी कुछ सवाल है. We actually posted through our story and they asked certain questions. So the ठीक first है. question being, what is your biggest motivation that keeps you going forward? Biggest motivation, I think, see, end of the day, when you create something, you feel a sense of gratification. Or I think that for me is the motivation. जब मैं कुछ, you are in the middle of something where you're creating something, it feels good. So I think that for me is the motivation. But I would also like to say कि मतलब कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आप एक ब्रांड बिल्ड करो, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू, मतलब इथीरियल इज अ Yes, sir. brand which is not necessarily by my name. It's not a channel by my name, but I think ethereal is something which I want to see grow over the years Yes. and Okay, do sir. amazing things. So both Fantastic, these sir. things are my motivation. Okay, sir. So, sir, the next question is kind of weird, but they are asking like, आप कितना कमा लेते हो doing all these things? They really wanted to know that thing. यार अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, आई विल बी ऑनेस्ट, बिकॉज सो आई यूज्ड टू अर्न बिकॉज ऑफ, मतलब यूट्यूब से उतना ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि मतलब एडसेंस और वो इंडिया में उतना ज़्यादा पे नहीं करता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज. सो आई वुड डू फ्रीलांस प्रोजेक्ट, जो कि अभी थोड़े कम हो गए, विच इज़ एक तरह से देखा है तो अच्छी बात है, क्योंकि फ्रीलांस प्रोजेक्ट वाज नॉट माय गोल एवर. सो ओवरऑल Yes. अगर मैं बता रहा हूँ तो मतलब आई वाज एबल टू मेक अ डिसेंट लिविंग कंपेयर टू सम ऑफ माय, जो भी मेरे साथ मेरे कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं लोग, अगर मैं कंपेयर करूँ तो आई मतलब उतना हो जाता है. बट या कोरोना कोविड हैज़ उससे थोड़ा सा हुआ है. सो बट आई थिंक इट्स फाइन, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. ठीक होगा, मैं अकेला नहीं हूँ, काफ़ी लोगों का हुआ है. तो Yes, sir. Okay, sir. So the last question being is, what were the financials in the starting when you just started this Ethereal, and how did you kept going like in spite of that? Like, financial, how much I was making. no, no, sir. Like, what were the financial condition that when you just started Ethereal, and like, Okay. how did you kept going after that? So I, after graduating from BIT and before starting Ethereal YouTube channel, I worked in a couple of startups, and and I was making videos for them. I wasn't doing a mechanical engineering related job, but I was doing video related jobs. So I, मतलब पैसा उसमें ठीक ठाक था, मतलब आई वुड मेक अ डिसेंट लिविंग आउट ऑफ इट. सो उतना दिक्कत उस समय हुआ नहीं. और फिर जैसे कि मैंने बोला, बाद में भी मतलब बिकॉज यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री, सो आप लोगों से बातचीत होती है, आप लोगों को जानते हो, और फिर यूट्यूब चैनल है तो आपका काम देख के भी लोग आपको Yes. अप्रोच करते हैं कुछ वीडियोस बनाने के लिए. सो इट हैज़ बीन, मतलब टचवुड, आई हैव बीन लकी कि मुझे कभी पैसे की सच मतलब वो दिक्कत नहीं हुई, राइट. बट आई वुडंट से कि इथीरियल अगर मैं बोलूँ तो इट हैज़ ग्रोन मॉनेटरीली
नो मतलब इट हैज़ नॉट लाइक कि मतलब जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब से अब तक केवल इस सीरियल की अगर बात की जाए बहुत ज़्यादा पैसे मैं कमाने लगा हूँ, बट आई थिंक इट्स फाइन, मतलब वो गोल था भी नहीं इनिशियली और अभी तक मतलब रहा नहीं है, मे बी अब मुझे थोड़ा सोचना चाहिए उस बारे में, बट सो या आई मीन दैट्स ओवरऑल हाउ इट इज। ओके सर, बट लाइक इट्स आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बट सर ऐसा कभी हुआ है कि अभी जैसे आपके 93 के अराउंड सब्सक्राइबर्स भी हैं, सो सर ऐसा कभी कोई फैन आया लाइक ही और शी इज लाइक टोटली अमेज्ड बाय योर वीडियोस एंड मतलब काम हम मांगो ऐसा कुछ करके, लाइक ऐसा अभी तक हाँ कुछ हुआ? मतलब कभी कभी होता है, पीपल देखो मैसेजेस और मेल्स तो आ जाते हैं Yes. काफ़ी, एक दो मतलब कोई कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि लोग मिलने भी आए हैं कि उनको काम करने में इंटरेस्ट है या फिर वैसा कुछ है, हाँ, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स आप मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर क्या सीख कर रहा हूँ, तो अभी मतलब इफ आई एम नॉट सीकिंग अ राइटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो मेरे कुछ Yes, काम sir. करना ही होगा वो चीज़। सो नाउ इफ पिछले एक साल से आई स्टार्टेड गोइंग विद फ्यू पीपल जो कि मतलब कैमरा, क्योंकि इनिशियली मैं खुद जाता था एंड आई डोंट व्लॉग, आई डोंट पॉइंट द कैमरा एट माई सेल्फ एंड स्पीक Yes, इट टू sir. द कैमरा, सो I have now started into मतलब I have started taking people, कोई ना कोई एक साथ में होता है मेरे साथ यूजुअली, जो कि फिल्म कर रहा हूँ, सो वो होने लगा है, बट आई वुड नॉट से कि मतलब वो फैंस ही थे, इट्स जस्ट दैट उनका काम अच्छा था तो वो भी इंटरेस्ट भी थे मेरे साथ काम करने में, Okay, सो या मतलब पीपल विल कम एंड जॉइन यू, मतलब दैट्स द थिंग इट इज, अगर आप करते रहोगे काम तो पीपल विल कम एंड जॉइन यू बिकॉज दे विल रिलेट विद द काइंड ऑफ स्टफ दैट यू आर डूइंग। okay, that's great, sir. So thank you so much, sir, for answering their questions, and I hope the audience gets their answer. And now I would like my co-host Siddharth to take it forward. So Siddharth, can you just turn on your mic and just take it forward? Yeah. Thank you, Snake, for everything. Sir, can you hear me once again, sir? The मेरी आवाज clear है ना, sir? या 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 हाँ, sir. या आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, sir. Sir, like I am very much like fascinated by love stories and everything, sir. And मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको किसी इंसान के बारे में जानना है तो उससे प्यार के बारे में बात करो. So, if you like to throw some light on your love story, like how you met your love of your life and everything सो happened. सो पहले तो मैं वो गाना बता दूं, तुम आई थिंक यू आस्क्ड दैट क्वेश्चन, अब मेरे दिमाग में आ गया है। आई रियली लव अ सॉन्ग, देयर इज अ सिंगर कॉल्ड सजाद अली, इज अ पाकिस्तानी सिंगर और उसका कोक स्टूडियो सॉन्ग है तेरा नाम। uh, uh, वो गाना मतलब मैं पिछले एक साल से सुन रहा हूँ, बहुत रेगुलरली सुन रहा हूँ और मैं और मेरी वाइफ साथ में सुनते हैं, तो आई थिंक दैट इज अ सॉन्ग दैट आई वुड लाइक टू डेडिकेट फॉर हर, इफ दैट्स द थिंग। लव स्टोरी, so basically we were in there's a small place called Leta, it's near Agra, basically Agra और अलीगढ़ के पास पड़ता है, that is where my father was posted when I was in 11th and 12th, and my wife she also used to study in the same school, but हमारी कभी बात नहीं हुई थी स्कूल में as such because थोड़ा छोटी जगह थी और मतलब उतना ज़्यादा कुछ लड़के लड़कियों में फ्रेंडशिप होती नहीं थी वहाँ पे, बट बाय द एंड ऑफ माई स्कूलिंग जब हमारे बोर्ड एग्जाम होने लगे 12th के उस समय के आसपास, प्री बोर्ड के आसपास, आई स्टार्टेड लाइकिंग हर, और फिर इंटरेस्टिंगली मतलब पहले उस समय और खुद भी मतलब जस्ट आया ही था और कोई था नहीं ऐसा, मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल में सोशल मीडिया वगैरह पे कोई नहीं था, मैंने एक दो लोग थे जो इन्होंने अकाउंट वगैरह बना रखा था, तो ऐसा नहीं था कि आप इंटरनेट पे बात कर लो जाके, किसी से पहुंचना बहुत मुश्किल था, तो मैंने जैसे पहले के ज़माने में लोग लव लेटर लिखते थे, तो मैंने एक सीडी लिखी थी, सीडी में एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया मैंने और मैंने वो किसी के थ्रू उस तक पहुँचाया। इट वाज़न्ट अ लव लेटर एज़ सच, इट वाज़ मोर ऑफ अ कि मतलब आई वांट टू बी अ फ्रेंड। तो वो सीडी उस तक मैंने किसी तरह से पहुँचाई और फिर शी केम बैक, मतलब हम लोग जब स्कूल में मिले फिर वापस कुछ आई थिंक कुछ वापस स्कूल पहुंचे जब, तो शी केम एंड सेड कि दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट डोंट गो अराउंड एंड ढिंडोरा मत पीटना बिकॉज छोटी जगह है, यहाँ पे लोगों के माइंड थोड़े वैसे हैं, विच इज मतलब फाइन। सो धीरे धीरे फिर मतलब मैं चला गया, मैंने एक साल कानपुर में कोचिंग की थी बिफोर गेटिंग टू GIT मेसा, एंड शी वेंट टू अ कॉलेज इन ग्वालियर, एंड फिर धीरे धीरे मतलब ये सब शुरू हुआ है अगर जनवरी में, मान लो दिस वाज 2008,
2007, this was 2007. तो आप ये मान लो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक she also started liking me and you know then फिर धीरे धीरे सब हो गया क्योंकि हमारी बीच बीच में बात होती थी कभी कभी and that was also on and off, you know, कि हम वो दिन थे जब आप ऑर्कुट पे बैठ के वेट करते थे कि सामने वाला ऑनलाइन आएगा तब आप स्क्रैप लिखो तो फिर उधर से एक स्क्रैप आता था और मतलब थोड़ा अलग सीन था फिर सो या आई मीन धीरे धीरे फिर हो गया फिर मैं कभी कभी जाता था कॉलेज से बीच में एक दो बार कभी ग्वालियर गया तो बहुत दिनों बाद हम मिलते थे मतलब स्काइप ने बहुत हेल्प की हमारी जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो इस मामले में मैं थोड़ा पायनियर था That's a beautiful, sir. Beautiful. So we'll add to this one more question. Since you have traveled a lot, did you have ever had any psychedelic experience with mushrooms and all those? नहीं एक्चुअली आई एम मतलब आई डोंट मैं वैसे मतलब स्मोक भी नहीं करता हूँ सो आई हैवंट ट्राइड इट अभी तक एज सच और अपार्ट फ्रॉम दैट बट आई एम नॉट टू मच इनटू ट्राइंग फूड you know my wife is super into it she likes to try a lot of different kinds of food but I am slightly less well I would try different things but मेरे को taste ज़्यादा important which I think I should try and change going forward ये मैंने थोड़ा सा भी I've been thinking about it but as such मैंने कभी साइकेडेलिक एक्सपीरियंस नहीं किया है बट यार आप जब होते हो जंगल में और आप गिरते हो फिसल के और जब हड्डी टूटते टूटते बचती है तो वो साइकेडेलिक एक्सपीरियंस ही होता है सर आप ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल फिगर फॉर अस बिकॉज यू हैव बीन साइक्लिंग अक्रॉस द खारदुंगला पास सो वेयर डिड यू गॉट दिस मोटिवेशन फ्रॉम सो आई वुड लाइक टू मतलब मैं आई डिडंट साइकिल मैंने नहीं किया था पूरा अच्छा मैंने बीच बीच में कहीं कहीं पे किया था आई वाज एक्चुअली फिल्मिंग द वीडियो राइट okay sir but there was this team Amol is a friend of mine he you know he did this expedition or there were some people from different parts of India who came in and they did cycle but just being there with them I think it was a very good experience दो चीजें थी एक तो मतलब जब आप देखते हो बिकॉज उसमें फॉर एग्जांपल एक सर थे ही वो 62 या 63 years old at that point of time अभी तो और ज्यादा हो गई he cycled all the way from Manali to Khartoum and he was from Hyderabad so मतलब मैं तो नहीं कर पाता बिकॉज आई एम नॉट दैट साइकिलिंग मैंने की भी बट ही वाज ऑब्वियसली इनटू साइकिलिंग बट स्टिल गिवन द एज so if you're in that kind of atmosphere you're seeing people struggle and hustle और बहुत ज़्यादा मुश्किल है मतलब साइकिल करना पहाड़ों में मनाली से खारदुंगला जाना लोगों को लगता है बोलने में अच्छा है बट जो करता है उसे पता है क्योंकि मैंने बीच बीच में साइकिल चलाई थी तो मुझे मालूम है दूसरी चीज़ ये है कि second good thing that happened was when we were going there we usually क्या होता है जब आप मनाली टू खारदुंगला या मनाली टू ले जाते हो लद्दाख जाते हो तो आप 3 दिन में बाइक या उस पे जा रहे हो 2 या 3 दिन में पहुंच जाते हो but because we were cycling we took around 10 days so we would cycle we would go 50 kilometers and then again we would go 50 kilometers or so more or less so that experience gave us enough time to absorb the whole vibe and the surrounding तो हमारे कैंप साइट्स जिन जगहों पे थे वो बहुत ही खूबसूरत जगह थी क्योंकि कोई कैंप साइट ऐसी जगह पे था कि सामने वाटरफॉल हो रहा है कोई कैंप साइट ऐसी जगह था बगल में से एक बहुत ही खूबसूरत सी नदी जा रही है और so we had and because people were cycling and I was in a support vehicle I have got enough time to sit and wait for them so when you're sitting and waiting for people and you're in the middle of that atmosphere and तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था तो आई थिंक दैट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल जो मैंने किया मतलब आई वाज जब अमोल ने मुझे बोला था कि आप आओ तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है चलो देखते हैं क्योंकि मैं कभी लेह लद्दाख गया नहीं था बट आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड फर्स्ट वे ऑफ गोइंग टू लद्दाख yes this is motivation sir are you a mountain person or a beach person आई एम मोर ऑफ अ स्टोरी टेलर तो मुझे जहाँ पे भी अच्छी कहानी मिले आई थिंक well I always say कि I more than a traveler I think I'm a filmmaker so I would कहीं पे भी मुझे कुछ इंटरेस्टिंग कहानी मिले I would love to okay sir this was just one last question there's a lot of people from engineering who want to become a traveler inspiring filmmakers and all what is your advice for them as such my advice for them is कि मतलब देखो अगर
किस लेवल की एडवाइस है वो भी डिपेंड करता है, बट ओवरऑल आई वुड से कि आजकल बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है टू पुट आउट कंटेंट, अगर आप थोड़े क्रिएटिव हो। और इक्विपमेंट भी इजीली, मतलब अभी तो क्या है कि गिम्बल आ गया है, ड्रोन आ गए हैं, सो मतलब यू कैन गेट गुड शॉट्स, इतना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रह गया है अभी। और आपका थोड़ा सा, इफ यू हैव अ क्रिएटिव सेंस, यू विल बी एबल टू क्रिएट स्टफ एंड ऑल ऑफ दैट। बट आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, और अभी बहुत ज़्यादा अगर आप ट्रैवल फिल्म मेकिंग की बात करें तो हम लोग जगह बहुत सारी दिखा रहे हैं, राइट? वी आर इनटू कि अब ये जगह दिखा दी, ये जगह दिखा दी, या वो जगह दिखा दी, बट ओवरऑल आई थिंक कहीं ना कहीं अभी और इवॉल्व होंगी चीज़ें, और होनी भी चाहिए। तो आप कहानियाँ ढूंढने की कोशिश करें, और वो एक्सपीरियंस अगर आप इंजॉय करेंगे तो फिर यू विल हैव अ गुड टाइम। ट्राई टू गो अ लिटिल बिट डीपर इनटू कि ये चीज़ ऐसी है तो क्यों है, और इंस्टेड ऑफ जस्ट कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ और ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे होने की वजह से। मतलब वो सब ठीक है, मतलब दैट्स अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रैवल, बट so my advice would be try to go find some stories that you relate with. Sorry, this has to be the last question. What is your one learning from traveling? My learning, यार बहुत सारी learning है। I think I have whatever world view I have at this point of time in life, it's because of, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं experiences से सीखता हूँ। लाइक मेरे एक दोस्त है, हम और वो कभी कभी बातें करते हैं, तो हम लोग एक प्लेन पे होते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो चीज़ इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो उसने किसी किताब में पढ़ा है, बट मैं वो चीज़ बोल रहा होता हूँ क्योंकि वो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से उस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूँ। सो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं यार, मतलब मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। एक चीज़ जो मुझे ये रियलाइज़ हुई है कि अभी जो दुनिया का जो स्वरूप है, द वे वर्ल्ड इज राइट नाउ, वी आर रनिंग आफ्टर थिंग्स। और अभी मैंने एक वीडियो बनाया था गोवा का, उसमें मैंने इस बारे में बात भी की थी। वी हैवंट डिफाइंड अ लिमिट, एवरीथिंग इन लाइफ हैज अ लिमिट, एवरीथिंग इन एट नेचर हैज अ लिमिट। बट हम लोग को पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, बट हम चले जा रहे हैं बिकॉज वी want to grow, which is not a, मतलब growing is not a bad thing, but it's just that आप कभी कभी किसी चीज़ों में अति कर देते हैं तो दिक्कत आती है, और फिर इट बिकम्स अ नॉर्म। सो आई थिंक हमको थोड़ा उस बारे में लाइफ को अच्छे से जीने, फैमिली के साथ अपने थोड़ा सा एक पॉज लेके जीने का, ये मैंने जितने लोगों से मैं मिला हूँ अलग अलग जगहों पे जाके, गोवा हो गया या फिर लद्दाख हो गया, स्पीति हो गया, या फिर नॉर्थ ईस्ट बहुत गया हूँ मैं। तो आई थिंक ये चीज़ मुझे समझ में आई है ओवरऑल कि जो बोलते हैं ना, लाइफ इज नाउ। सो आई थिंक दैट हैज बीन अ वेरी गुड लर्निंग फॉर मी। Okay. I just got one question in the chat box. That is, your filmmaking and travel videos you make is wonderful and it's too beautiful. But still, we think that you're pretty underrated as of now, sir. So, what has to be was reason and यार देखो, आई थिंक, पता नहीं, मतलब आई थिंक अबाउट इट, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता हूँ, राइट, अपने कंटेंट के साथ। और तो कभी कभी कुछ चीज़ें वर्क करती है, कभी नहीं करती हैं। सो जब आप किसी भी यू नो पीपल हैव गॉन एंड डन सम गुड थिंग्स इन लाइफ, ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, अगर मैं बोलूँ वो, तो यू विल सी दैट दे हैव आल्सो ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे हैव, तो मैं अपने डोमेन एंड उनके साथ ज़रूरी नहीं है कि नहीं पहले चीज़ में ही वो चीज़ उनको उस मुकाम पे पहुंचा दी हो, या जहाँ वो पहुंचना चाहते थे या फिर जाना चाहते थे। तो वो ज़रूरी है आई थिंक, कहीं ना कहीं अपने डोमेन में, अपने एक रेंज में थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करते रहना। एक सेट पैटर्न अगर मैं फॉलो करके करूँ तो आई थिंक ग्रो कर सकते हो। इट्स नॉट वेरी, देखो अभी यूट्यूब वगैरह पे ग्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इफ़ आई स्टार्ट तो क्रिएटिंग कंटेंट विच इज़ व्लॉग लाइक कंटेंट, आई एम श्योर कि पीपल विल स्टार्ट रिलेटिंग विद मी एंड आई कैन ग्रो फास्टर। बट द थिंग इज कि आपको अपना गोल भी देखना होता है, और आप क्या करने में कि आप मजा आता है आपको, वो भी देखना होता है। एंड ऑफ द डे यू आर हैप्पी, अच्छा लग, मतलब आपको खुद अच्छा लगना चाहिए एंड ऑफ द डे। बट हाँ, अगर व्यूज मिले और थोड़ा सा एप्रिसिएशन ज़्यादा मिले तो भी तो मतलब एंड ऑफ द डे देखो यार, आप बना रहे हो कंटेंट, पुट आउट, इफ यू पुटिंग आउट कंटेंट, यू वांट पीपल टू वॉच योर फिल्म्स एंड वीडियोस, एंड अदरवाइज आप बना के खुद अपने पास ही रख रहे होते हैं, यू नॉट बी शेयरिंग इट ऑनलाइन। तो
वो मिले अप्रिसिएशन अच्छा, बट गुड थिंग इज कि मुझे जितने भी लोगों से मिलता है वो अच्छा अप्रिसिएशन बहुत मिलता है. लाइक पीपल डू कम एंड से इट्स नॉट दैट बहुत ज़्यादा मतलब हज़ारों लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं डेली, बट एक या दो लोग भी मैसेज कर रहे हैं जो कि अच्छा मैसेज, अगर इफ दैट पर्सन इज टेकिंग आउट टाइम टू राइट अ कपल ऑफ पैराग्राफ्स एंड डिफाइन कि उसको मेरे काम में क्या अच्छा लगता है, तो आई थिंक वो दैट मेक्स इट वर्क एंड दैट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग. सो वो अंडररेटेड वाली बात हो जाएगी. मतलब आई हैव नो डाउट कि वो सब यार ये सब ऑन इन द लॉन्गर रन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीछे देख के यही होगा कि यार हाँ मतलब दैट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. सो आई एम नॉट उतना ज़्यादा मैं उससे वरीड नहीं रहता हूँ. Yeah, sir. Sir, एक क्वेश्चन जस्ट मेरे दिमाग में आया सर. यू टेल ऑल द स्टोरीज अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड आपकी जो फिल्म मेकिंग होती है वो ह्यूमन बींग्स के अराउंड रिवॉल्व करती है. And that is same with Life Talks ISM. What we basically do is want to know people little better. That same with Same with us, sir. Life Talks ISM. What we do basically is we want to know people little better. So, what is that one advice which you like to give us? मतलब हमें आपकी advice देना चाहूँगी कि this is a way we can learn a lot about people. ऐसे करो या कुछ. advice for you because you're doing a live show. I think मुझे लगता है आप ठीक है, यू आर डूइंग अ लाइव शो, बट कहीं ना कहीं यू शुड आल्सो गो आउट एंड मीट पीपल अराउंड यू. आप अपने कॉलेज के आसपास ही हैं, आपके मतलब कोई चाय की टपरी की दुकान चला रहा है या फिर उनसे बात करो, क्योंकि लाइफ समझने की कोशिश करो. सो यू विल अंडरस्टैंड कि लोग मतलब वो क्या सोच रहे हैं. कुछ चीज़ों की जो आप रिलेट करोगे आपको लगेगा ये तो मैं भी सोचता हूँ. और सो ऑल ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस ट्रैवल करो, टॉक टू पीपल, अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, what. So all of those things will help you in your live sessions also. Okay, sir. So wonderful, sir. Wonderful. It was wonderful talking to you, sir. So if you can just say this one thing over here to follow us on Instagram, sir, to follow Life Talks ISM on Instagram, to mean a lot to Guys, us. follow Life Talk ISM. I think I am one of the first people इन्होंने मुझे मैसेज किया और I was more than happy to come on board. So I am sure आगे और भी बहुत से लोग आएंगे. So do follow them and have fun. I definitely recommend you check them out. Okay, sir. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. Means a lot. So with this, the conversation, the beautiful conversation that we shared for like 1 hour, it comes to an end, sir. And thank you, sir. So you can just turn off your mic, sir. It's completely fair, sir. Yes, sir. Okay. Thank you so much, guys. It was great. Okay. So this is for all the audience. Thanks a lot, guys, for joining in. अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है या आप देख रहे हो, I know you've learned a lot of things about traveling, about love also, about experiences, about human beings. So that's it. Thanks a lot. Stay tuned to us and do follow us on Instagram. And also something very important, I'd like to thank all the team members who are working day and night to make sure this event is a perfect event as such. I want to thank Saurabh Kumar, Santosh Kumar Behra, Harshal, Shailesh. Thanks a lot there because without them, it wasn't even possible. So thank you. With that, we're gonna end the first show on Saturday Suspense by Live Talks ISM. Thank you guys.